Today we are discussing a topic is related to the grammar for the standard of intermediate second year, second language Hindi. In previous class we have discussed the same topic, but here the Sandhi Vichhed. Sandhi Vichhed, how many kinds of divide the how many parts? That means 3 parts. There out of 3 is the one of the here Swar Sandhi, Vyanjan Sandhi and Visarga Sandhi. Again that Swar Sandhi divided into 5 subparts. There's a 5 subparts. Out of them we are completed in 2 parts in previous class. That's a Dirgha Sandhi, उसके बाद वृद्ध संधि. यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर वृद्ध संधि या यण संधि एंड आयादी संधि. तो दिस the remaining 3 parts we are discussing today's class. So the Sandhi Vichhed means what can be a sensible word can divide into 2 sensible words. That means as per the division, the pronunciation, the first word last letter and second word's first letter, as per the combination, the new word which is creating, that's the sound will be different. Here how to change is, here all that the principles are given and learn in this grammar item. But in your examination, you didn't ask to that the name of the Sandhi, but you should write here that given a new word, but a sensible word, that word can be divided into the 2 sensible words only. You are not how to dividing, you are how to what is the name of that Sandhi, you didn't ask that. You just you are all that information given here for getting the knowledge only. But in this all that in the depth knowledge is not need for a examination. Here in examination ask that out of 8 words, here you attempt any 5. Here out of 5, here means each containing 1 mark. Here this part is containing here for 5 marks. Sir, here what is the question of how to ask the question for the Sandhi? In Sandhi means here given the 8 sensible words are there. Here that each word can be divided into the 2 sensible words. Here out of 8 attempt any 5 only. Here out of 8 attempt 5 means each containing 1 mark. 5 into 1 is equal to 5 marks. That's all. Here sensible word means here asking that here is a yadyapi, yadi plus api, that's you are. Here vidyalay, vidya plus alay, that's all. Either, but why you are getting that deep explanation means for getting the knowledge only. So, okay. So see here in previous class we are discussing about the Sandhi, that too Swar Sandhi. Here Swar Sandhi, you got here 5 subparts. Swar Sandhi is one of the part of in Sandhi, but what division? But that one of the part can divide again the some parts that's called as a subparts. Here how many subparts it containing? It's containing 5 subparts. Here out of them the 2 are the discussed in that introduced in previous class, but today in this class remaining 3 we are introducing you. That's the first out of them. That's the first one is Vruddhi Sandhi. Vruddhi means they are changed, they are developed. Here see A और A का A I से मेल होने पर here see यह प्रिय छात्रगण शुभोदय. आज के इस विषय में सरल व्याकरण से संबंधित मुख्य विषय अपना शीर्षक है संधि विच्छेद. ये संधि विच्छेद किस तरह के बालकों के लिए है? ये द्वितीय वर्ष
यानी इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष और द्वितीय भाषा के स्तर के बालकों के लिए जो व्याकरण संबंधी विषय का विश्लेषण किया जा रहा है। इन प्रीवियस यानी पिछले अंतरों में अब इसी शीर्षक के संबंधी मैंने संधि विच्छेद के संबंधी विश्लेषण दिया गया। तो इस यानी पिछले अंतर के विषय में जब देखा गया तो संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के प्रकारों में 3 प्रकार बताए गए। इन 3 प्रकारों में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार बताए गए। इन तीनों में स्वर संधि जो होता है उसके फिर 5 प्रकार बताए गए, मेन भेद बताए गए। तो इन भेदों में 2 भेदों के बारे में विश्लेषण किया गया और जैसे बताया गया तो दीर्घ संधि और ह्रस्व संधि, उसके अलावा यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि, यण संधि और आयाद संधि, ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों में दीर्घ संधि और ह्रस्व संधि के बारे में इन्हें पिछले अंतर में बताया गया और बाकी इन्हें रिमेनिंग 3 भागों के बारे में यह आज के इस अंतर में विश्लेषण किया जा रहा है। संधि विच्छेद के अंतर्गत परीक्षा में आपको केवल 8 शब्द दिए जाएंगे। 8 शब्दों में केवल 5 को मात्र ही लिखना है। 5 में यह इसका केवल संधि विच्छेद एक सार्थक शब्द को अर्धपूर्ण 2 शब्दों में विभाजन करना है। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय, इतना मात्र ही आपके उत्तर पुस्तक में लिखना है। यह विद्यालय कैसा विभाजन किया गया, यह कौन सा कौन सी संधि है, इसके नामकरण की, इसका विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना सा विस्तार सा विश्लेषण क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपको संधि के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञान उन्नति के उद्देश्य ही मात्र ही दिए जा रहा है। इसके सीखने मात्र से किसी भी प्रकार के शब्द को हम उच्चारण के संबंधी विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, और आ का ये ए आई से मेल होने पर, किसका, आ और आ, ये दोनों स्वर अक्षर हैं। ये दोनों स्वर अक्षरों को ए और आई के साथ माने विभिन्न शब्दों के साथ, पिछले अंतर में हमने क्या देखा है, आ और आ के साथ वो अक्षर जो स्वर अक्षर उसी वर्ग के अक्षरों के साथ माने आ के साथ आ का जुड़ना, आ के साथ आ का जुड़ना, ई का जुड़ना, इस तरह का, इस प्रकार से। लेकिन आ और आ के साथ ए और आई से मेल होने पर आई बन जाता है। और आ के साथ माने ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ह्रस्व और दीर्घ के साथ ओ और औ जुड़ गया है। आ के साथ ओ या आ के साथ ओ, या आ के साथ औ या आ के साथ औ, इस प्रकार के जुड़ने मात्र से उसका समापन जो होता है औ के साथ हो जाता है। जैसे यहाँ पर होता है आ और ए, आ और ए का जुड़ गया, आई बन गया है, यहाँ बच्चे से बताया। और आ के साथ में आई के साथ जुड़ा है तो भी आई बन जाता है। माने आ के साथ नहीं, आ के साथ ए का जुड़ गया, आ के साथ आई का जुड़ गया, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये दोनों वर्गों के साथ, ये दोनों किसी भी रूप में अगर मेल हो जाता है या जुड़ जाता है, उसका विश्लेषण क्या होता है, और आई के साथ बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आ और ए मैंने आई बनता है। जैसे उदाहरण के लिए एक के एक में का ह्रस्व है, इसके साथ कोई दीर्घ की मात्रा नहीं जुड़ी है, तो यह ह्रस्व का उच्चारण है। और एक यहाँ पे दूसरे शब्द, पहले शब्द का अंतिम वाला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों जुड़ने मात्र से आइक बना है, एक काइक बना है, ये आइक, एक काइक है ना। ए प्लस आ प्लस आई यानी आई माने जैसे बताए मत माने आ है, ये आई है, ये मत माने आ है, ये आई में आई है ना। यहाँ पे आई का रूप जुड़ गया तो आ प्लस आई जो है आई बनता है मताइक। ये मत प्लस आइक, मताइक, इस तरह से आई की मात्रा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ए और आई आ के साथ, यहाँ पे आ के साथ ए आई जुड़ा है, यहाँ पे आ मैंने दीर्घ अक्षरों के साथ ए और आई का दोनों जुड़ने मात्र का यहाँ पे क्या है, इसका समापन जो होता है आई के साथ हो जाता है। इसलिए सदा उदाहरण के रूप में सदा प्लस आई यानी सदैव, सदा प्लस एव एव यानी सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महाऐश्वर्य,
माहेश्वर्य, माहेश्वर्य एक शब्द का रूप है। जिस तरह से ये कैसे जुड़ा है, ये महा प्लस ऐश्वर्य के माने, ये दो महा का माने महान ग्रेट, ऐश्वर्य का माने लग्जरी, माहेश्वर्य माने मोर लग्जरीस या लाइक ग्रेट लग्जरीस मीन्स two sensible words are together, then creating a new sensible word like this one. So यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे ये वर्ग, एक वर्ग के बारे में जब देखा, आ का ए आई के साथ जुड़ने मात्र से आई के साथ तथा आ और आ के साथ ओ और औ जुड़ा है, आ औ के साथ ए आई जैसे जुड़ा है, दो वर्गों के साथ ओ औ के जुड़ने मात्र से उसका उन्हें उच्चारण कैसा होता है, परिवर्तन औ के साथ बन जाता है। जैसे आ और ओ के साथ, आ के साथ ओ को जुड़ गया तो क्या बन गया, औ बन जाता है। जैसे वन माने वन में आ का रूप है, यहाँ पे शब्द के अंतिम में आ माने दीर्घ का रूप, इकारांत नहीं जुड़ा है तो वो ह्रस्व रूप है। ह्रस्व रूप का माने आ का रूप होता है। वन प्लस औषध, ये ओ है ये यहाँ पे आ का रूप जुड़े है यहाँ पे दूसरे शब्द का आरंभ जो है ओ के साथ जुड़ा है, उसका समापन जो है औ के साथ हुआ है। वनौषधि, औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, इस प्रकार से औ बन जाता है। यहाँ पे पहला ह्रस्व के साथ दीर्घ रूप सेम ओ के साथ जुड़ा है तो इसका क्या हो गया, कभी भी क्या बनते हैं, ये दीर्घ के साथ ओ का जुड़ जाना क्या है, औ बनता है। जैसे महाप्लेस, महाप्लेस आकारांत रहने से इसको आ बढ़े, महाप्लेस औषधि या ओ है ना, औषधि ऊपर में जैसा ओ मिला है इसी प्रकार औषधि यहाँ पे ह्रस्व के साथ या दीर्घ के साथ औषधि, महाऔषधि या वनौषधि, महाऔषधि, औ का कामन यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पर ह्रस्व रूप होने मात्र से यहाँ पर दीर्घ मात्र होने से क्या परिवर्तन हो गए, दोनों में समान रूप में समापन जो होता है औ, यानी ह्रस्व या दीर्घ जुड़ने मात्र से उसमें औ का ही उच्चारण होता है। जैसे बताया गया आ प्लस औ, जैसे आ का उच्चारण औ के साथ जुड़ा है, यहाँ पे ओ के साथ जुड़ा था, ये दोनों अक्षरों को ओ के साथ जोड़े यानी इसमें उसका उच्चारण में औ का परिवर्तन है। अब आग वाले अक्षर को ओ के साथ और औ के साथ, इसको ओ आ के साथ, आ वाले अक्षर को ओ के साथ में, आ वाले अक्षर को औ के साथ में, जैसे पहले आ के साथ जुड़ा है दूसरे आ के साथ में जोड़ने मात्र से उसी का उच्चारण में भी औ का ही उच्चारण होता है। इस प्रकार से आ प्लस ओ यानी औ, जैसे परम प्लस औषध मैंने परम औषध, आ के साथ औ को जोड़ा गया, महा प्लस औषध महाऔषध, जैसे यहाँ पे वनौषधि महाऔषधि, जैसे है परम औषध महाऔषध। इस प्रकार से यहाँ पर उच्चारण में कैसे परिवर्तन हुआ है यहाँ पर इसका दर्शाया गया, ये इसको समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार इस वाले विषय को, इस प्रकार परिवर्तन होने वाले को क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि कहते हैं। यानी आ और आ के साथ ये आई जुड़ने मात्र से आई का उच्चारण, आ और आ के साथ ओ और औ जुड़ने मात्र से औ का उच्चारण आता है। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, ये वाला जो होता है वो वृद्धि संधि का रूप है। इसी प्रकार यहाँ पर जो होता है और यण संधि का रूप में जब देखा गया, यण संधि जो होते हैं ई और ई के, जैसे यहाँ पे आ और आ देखा गया, यहाँ पर ई और ई के आगे कोई विजातीय मैंने जाति का माने उसी वर्ग से जुड़ा हुआ, विजातीय मैंने और असमान रूप से आ के साथ का जुड़ना, का के साथ इस प्रकार भिन्न अक्षरों का जुड़ना, ये जुड़े स्वर होने पर आ ये ई को य के साथ हो जाता है। यह ई और ई किसके साथ में, ई और ई को या जुड़ने में स्वर होने पर ई को या जो जाता है, उ के साथ आगे कोई विजातीय स्वर, विजातीय स्वर का माने उ के अलावा और भी आ ई रू ऐसे जुड़ने मात्र से
ये वाले सजाती है। विजातीय स्वर का माने क्या होता है, इसके अतिरिक्त जो भी स्वर के अक्षर होते हैं उसको विजातीय कहा जाता है। सजाती का माने आ के साथ आ का जुड़ना, ई के साथ ई का जुड़ना, आ के साथ आ का जुड़ना, ई के साथ ई का जुड़ना, ऊ के साथ ऊ का जुड़ना, ये क्या होता है, यह स्वजाती है। ई के साथ ई, रस्व के साथ दीर्घ या दीर्घ के साथ ई रस्व, ये जो है सजाती है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो भी स्वर अक्षर जुड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अने विजाती कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा नियम जो बताया गया, उ और ऊ के आगे कोई भी विजातीय स्वर के आने मात्र से उ और ऊ को व के हो जाता है। इसके स्थान में व के समान व रस्व के रूप में उच्चारण किया जाता है। ये तीसरा वाला जो होता है, रू के आगे किसी विजातीय स्वर ई उ रू, है ना, यहाँ पे आ तक देखा गया, यहाँ पे ई उ रू के रूप में देखा जाता है। इसमें कोई भी विजातीय रूप स्वर जुड़ जाता है। यहाँ विजाति का माने व्यंजन का रूप नहीं, स्वर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये सारा विषय जो होता है स्वर अक्षरों के संबंधी वर्ग से ही जुड़े हैं। रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने मात्र से र के रूप में जुड़ जाता है, या य के रूप में, व के रूप में, र के रूप में। इस प्रकार परिवर्तन होने वाले को क्या कहा जाता है, यण संधि कहते हैं। यण संधि माने यण का माने टोटली डिफरेंट वाला जो होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ई के साथ में आ को जोड़ा है, माने आ अलग है, ई अलग है। ई के साथ ई, आ के साथ आ, यहाँ पे देखिए आ के साथ ए, इस तरह से यहाँ पर भी ई के साथ आ का जुड़ने से य प्लस अ यदि माने ई का रूप है। आ अने अपी, आ फर्स्ट लेटर का सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर का अंतिम वाला लेटर यानी ई। तो इस प्रकार से यदि प्लस अपी, यद्यपि, है ई प्लस आ, पहले ई के साथ में जुड़ा है, सेकंड आ के साथ में जुड़ा है, तो ई प्लस आ, य मैंने य प्लस आ, ये प्लस आ, य प्लस आ, है ना। तो यहाँ पे नदी प्लस ये ई है ना, फर्स्ट वाला ई नदी माने दीर्घ रूप है, ई फर्स्ट सेकंड ई, यहाँ पे इकारांत है, ई का रहने से फर्स्ट इकारांत है ना। इस प्रकार से ये ने इति प्लस आदि, ये सेकंड आ जो होता है सेकंड लेटर के साथ में, ये फर्स्ट ई जो है फर्स्ट वर्ड के अंतिम वाला लेटर के साथ में, ये इस प्रकार जुड़ा है। ई प्लस अ माने य का जुड़ जाता है, य के साथ में ये किसी अन्य शब्द स्वर वर्ण के साथ में विजातीय स्वर के साथ जुड़ने पात्र से इसके स्थान में, ये माने ये दोनों जो जुड़ता है उसके स्थान में या जो होता है, इसलिए हम इस दोनों के स्थान में क्या जोड़े, या को जोड़े, इसके साथ ये आ को जोड़ना है। ये आ जुड़ा है, यहाँ पे आ जुड़ा है, आ जुड़ा है, यहाँ पे आ जुड़ा है, यानी नदी प्लस अर्पण, अर्पण फर्स्ट आ रहने से अर्पण, नदार्पण, नदार्पण, अने ये उ प्लस आ व, ये उ के साथ में ई के साथ जब जुड़ गया, या के साथ जुड़ा है, उ के साथ जो भी जुड़ता है तो वा के साथ आता है, चाहे वो रस्व हो या दीर्घ हो, यानी दूसरे अन्य स्वर के साथ जुड़ने मात्र से वा का परिवर्तन आ जाता है, उच्चारण आता है। व प्लस अ माने अनु प्लस आय, यानी अन्वय, अनु प्लस आय मीन्स अन्वय, अनुवाय है ना। इस प्रकार से व प्लस अ, उ प्लस अ, व प्लस अ माने या उ के साथ में जो भी अक्षर उ और उ के साथ जुड़ जाता है, क्या हो गया, उ जुड़ जाता है तो उसको वा का उच्चारण के रूप में लेते हैं। जैसे अनु प्लस आय यानी अन्वय। इस प्रकार उ के साथ आ माने मैंने स्वागत, इस प्रकार से उ के साथ आ का जुड़ना है, उ के साथ ए का जुड़ना, इस प्रकार यहाँ पे देखा गया। स्व प्लस अ है सु प्लस अगत है स्वागत, सु के माने अच्छा, उ प्लस ए मैंने ए, जब ये जुड़ जाता है तो क्या बताए, एकारांत आ गया यहाँ पे। देखिए ये उ के साथ ए जुड़ा है, वो प्लस ए, अनु प्लस
ऐश्वर्य અને એશન अन्वेषण अनु प्लस एशन अन्वेषण रू प्लस क्या रू के साथ जुड़ने मात्र से क्या बने हैं र का रूप होता है, इन्हें रू के स्थान में रा का उच्चारण कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा पितृआज्ञा, इस प्रकार जहाँ एक ही विषय याद ध्यान रखिएगा ई के साथ में कोई अन्य स्वर जुड़ जाता है, मेन ई के साथ अन्य जुड़ जाता है तो उस स्थान में क्या है ई के स्थान में या को जोड़ लेनी चाहिए। इसके साथ आ जुड़ा है, ई जुड़ा है, ऊ जुड़ा है, कौन सा भी जुड़ने मात्र से उसके साथ उसका उच्चारण ये जोड़ लेने चाहिए, योग के साथ में आता है। और यहाँ पे ऊ के साथ में वा का उच्चारण आता है, रू के साथ में आरु का रूप उच्चारण हो जाता है। इस प्रकार से ये यण संधि का उच्चारण उदाहरण विश्लेषण है। और अंतिम वाला अक्षर जो संधि है स्वर संधियों में पांचवा वाला जो संधि है भेद है वो आयादी संधि। आयादी संधि में ये आई और ओ औ से परे किसी, परे माने अन्य कोई, परे का माने अन्य, अन्य मीन्स रिमेनिंग अदर्स, अदर्स माने परे लोग माने अदर्स। ओके, ये जो होता है अन्य रूप में बताया गया, अन्य और अदर्स, अन्य और अदर्स। ओके, तो इस किसी स्वर को होने पर क्रमशः आए, आए, आओ और आओ हो जाता है। इस प्रकार में ए आई के साथ आ के ओ के बनने से आए, ए के बनने से ओ मिलने से आए, इन्हें आओ बिन। इस तरह से यहाँ रस्व है तो यहाँ रस्व आता है, यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ रूप है। आ के साथ है ओ को जुड़ गया आए, यहाँ के साथ ओ को जुड़ गया आए, आए, अने ये जुड़ गया आय का रूप होता है। ये जो वाला लेटर ये वाला लेटर के साथ में ये जुड़ने मात्र से ये वाला आ जाता है ना। ओ के साथ में ओ जो है ओ के साथ में और किसी के जुड़ने मात्र से ओ आओ, आओ का रूप है। इसके साथ कोई जुड़, ये दोनों के साथ जुड़ने से ये मिलता है ना, ये दोनों के साथ जुड़ने मात्र से ये दोनों बन जाते हैं। बात याद रखिएगा, ए आई के साथ कोई अन्य किसी स्वर का मिल जाने से क्या आय का रूप होता है, वो औ के साथ कोई जुड़ जाते हैं, ओ आओ और आओ का रूप बन जाता है। इस प्रकार से ये प्लस आ जो है आई प्लस अ माने ने प्लस अन नयन, न गाओ, एक गाय प्लस अक गायक। यहाँ पे देखिए ये लेटर के साथ आ को जोड़ा, ये लेटर के साथ आ को जोड़ा, तो यहाँ पे किसी जुड़ने पर क्या होता है आई का रूप होता है, ये इसके जुड़ने से आई का रूप आता है ना, इसके जुड़ने से आई का रूप आता है, पहले का जुड़ने से आए, दूसरे के जुड़ने से आओ, यानी ये जुड़ने से आए मीन पहला रहने से रस्व का रूप है, दीर्घ रहने से दीर्घ रूप है। इसके साथ आ जुड़ा है, यहाँ पे आ को जोड़ लिए, ने प्लस अन, जैसे उदाहरण के पे ने महीने से ए के साथ एकारांत है, अन्न ने अन्न अने नयन, और आई के साथ आई की मात्रा गई, गई प्लस ये गई प्लस अक गायक। इस प्रकार से क्या बन गया गायक का रूप है। यहाँ पे ओ के साथ में अरे किसी अन्य को जुड़ने से क्या बन जाता है औ बन जाता है। यहाँ पे ओ एन औ, ओ के साथ में औ का रूप है, औ के साथ में आओ का रूप है। जैसे ए के साथ में औ आय का रूप है, आई के साथ में आय का रूप है ना। These are two. These are see here a I I। इस प्रकार ओ आओ 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 है ना। इस प्रकार यहाँ पे देखा गया है। ये ओ प्लस आओ पो प्लस अन पवन, पवन पावन माने पो प्लस अन, पो का माने ऊ का उच्चारण आता है, ओ पो माने ओ, पा प्लस ओ पो, ओकारांत मीन्स ओ अक्षर को जुड़ने वाला है ना, पो। पाऊ का माने पा प्लस औ पाऊ, ये वाली जो मात्रा है वो अक्षर मात्रा को सूचित करती है, औ की मात्रा उच्चारण आता है, उच्चारण के अनुसार। ये क्या है पाओ, पाओ प्लस अंक पावक है ना, पावक। इस तरह से औ प्लस ई
आओ प्लस ई मीन से नाव, मैंने नाव में पहला वाला अक्षर जो है नाव, ना के साथ आउ की जुतरा है, इसलिए आउ, और ये ई के साथ रहने से एक, नाव एक, ये जो होता है नाव प्लस एक, नाव एक है। इस प्रकार जो है संधि के विच्छेदों में 3 प्रकार हैं। 3 प्रकारों में इन्हें संधि विच्छेद, स्वर संधि, और दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा अव्यय संधि माने विसर्ग संधि। इन स्वर संधि के अंतर्गत मेरे जो भेद है वो भेद के रूप में 5 है, 2 उसमें बताया गया, जैसे दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व संधि, उसके यहाँ से वृद्ध संधि यानी यण संधि, और यह आयादी संधि। इस प्रकार ये जो है स्वर संधि के अंतर्गत है। यानी परीक्षा के अंतर्गत स्वर संधि का यानी परिभाषा यानी तो उसका विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दिए गए शब्द का शब्द विच्छेद मात्र करना है। इसलिए इस वाले विषय का विश्लेषण इसलिए दिया गया ताकि संधि के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। इस प्रकार से संधि का समापन हो जाता है। धन्यवाद।